वो पेरेंट्स जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, वो अपनी उस प्यूबर्टी वाले स्टेज पे जाएँगे और प्यूबर्टी वाली स्टेज पे जब बच्चे जाते हैं तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनके बिहेवियर्स में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आप प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस बताइए कि आपने कैसे उस स्टेज को हैंडल किया? एक तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ न्यूरोटिपिकल एंड अ न्यूरोडाइवर्स। देयर इज नो डिफरेंस। उनकी भी वही नीड्स हैं जो दूसरे की नीड्स हैं, बिल्कुल सेम है। पेरेंट्स गलती कर देते हैं जहाँ पे वो इतना प्रोटेक्टिव कर देते हैं कि उनकी नीड्स और वांट्स को पीछे रख देते हैं। Hello and welcome everyone. So today, welcome to our very special podcast. I am your host Neha, and myself, I'm a speech language pathologist and a swallowing therapist, also who want to be the voice who needs it. So today we are here joined by two very special and two main change makers. So first we have Mrs. Millen, who is also an advocate for autism awareness and a very branded entrepreneur. Also, we have Mr. Bharat B. Chandra, who is the founder, a visionary founder and a managing director of SpeechGuess. Also, who's trying to change the vision how we see neurodivergent children with some more healthcare and services. Greetings parents and viewers. This is very first podcast of Speech Gears, and in this very first podcast we have invited very special guest. We have with us Milan Singh. She is our autism advocate, a proud parent. She has one neurodivergent son and she is doing wonders with her son. Let me introduce a little bit about her son. Sunny Samarjit Singh. Samarjit Singh is a role model and he has his Instagram channel which has more than 1 lakh followers, and I personally used to see those channels before I coming to know about Miss Milan. So I am also a parent, a special parent. My son is Laksh and he is 13 years now. So we'll be discussing about the autism. We will be sharing our own experiences, how our journey is. So I welcome Milan in Thank Speech you so Gears, much. and this is that you invited our. I mean, you come in on our invitation to discuss about the autism. Let's talk about the journey, how your journey began, when you come to know about his, he has a developmental challenges, and when you accepted it, and when you have first time realized that okay, he might, some developmental challenges. So उसके बारे में आप थोड़ा बताइए. Alright, so going back almost 17 years, we're going back there when Samar was born. Okay. उस समय उसके साथ बहुत सारे माइलस्टोन डिलेज थे, लेकिन मैंने कभी बॉदर नहीं किया क्योंकि कुछ उसके लिए सोचने का कोई मतलब नहीं था, कनेक्शन हो सकता है। Right. तब जनरली आप पेरेंट्स से पूछते हो, कहते हैं कि छोके कुछ बच्चे बाद में करते हैं। Right. ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट के साथ Right. हमने ऑलमोस्ट 2.5 साल निकाल दिए, बट वी कुड सी कि समर बोलता नहीं है, समर ने स्माइल बहुत बाद में किया, प्लस देखता नहीं है हमारी तरफ। तो ये चीज़ें चलती रहीं 2.5 साल तक। 2.5 साल में जब वो लोगों के यहाँ हमारे साथ जाता था, तब लोगों ने ये बात कहना शुरू करी कि आपको ऐसे नहीं लगता उसे आवाज़ वो जवाब नहीं देता? Right. तो हो सकता है कि उसे सुनाई नहीं देता हो सकता है, मतलब दे वर आल्सो वेरी स्केर्ड एंड सेइंग, टेलिंग मी दिस कि भाई आपके बच्चे को सुनाई नहीं देता है, हो सकता है वो बहरा हो, समथिंग। सो बट समहाउ दे सेड एंड आई वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। मैं रेडी ही नहीं थी कि नहीं, कैसे हो सकता है। मुझे पता है मेरे बच्चे को, मैं उसके साथ दिन भर रहती हूँ, तो जब दिन भर रहती हूँ मुझे ये भी पता है कि वो इसका कार्टून चलता है तो भाग के आता है देखने के लिए, तो उसे कैसे सुनाई दे रहा है। और अगर मैं किचन में हूँ और मैंने कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ खोली है खाने की स्पेशली, तो वो रैपर की आवाज़ सुन के आता है। सो दैट मीन्स वो सुनाई तो बकायदा देता है। तो आई डोंट नो व्हाई पीपल आर टेलिंग मी कि नहीं ऐसा आप दिखाओ, पर देन इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट योर डायग्नोसिस। तो हम उसको लेके गए डॉक्टर के पास। सो दैट वाज द first time I came to know about autism. There's a word called autism. ये क्या चीज़ है भाई, नई दुनिया में आ गई। So then that was the time he told me कि भाई इसमें क्या होता है कि they could not give me a clear definition about it. मैंने कहा इसमें बच्चा क्या अपनी दुनिया में रहता है, इसलिए वो देख नहीं रहा है, आपको देखता नहीं है। तो मैंने कहा यार मैं जब छोटी थी तो मैं भी ऐसे ही करती थी, मैंने कौन सा अलग चीज़ करी थी। सारे बच्चे मैं जानती हूँ जो मेरे सामने हुए हैं, वो भी उनके अपने इमेजिनरी फ्रेंड्स होते हैं, ऑल दैट। तो ये सब चीज़ें तो होती हैं, तो दे कुडंट एक्सप्लेन इट टू मी प्रॉपर्ली, एंड दैट वाज अ सैड पार्ट। क्योंकि मुझे उस समय मतलब आई वाज लाइक आई डोंट नो मैंने क्या सुना, क्या मानना चाहिए,
कुछ तो है मेरे बच्चे को जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है. And then when we came to Indore, we got proper diagnosis done the way it should have been. Right. Because यहाँ पे मुझे गाइड करने के लिए लोग थे. तो मैं डॉक्टर के पीडियाट्रिशियन के पास गई, उन्होंने कहा आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ. न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई, पूरा चेक करने के बाद डायग्नोसिस के बारे में बोला आप स्पेशल एजुकेटर के पास जाओ, स्पेशल आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाओ. दिस इज हाउ इट्स सपोज्ड टू गो एंड दिस इज व्हाट इट इज. सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई गॉट अ शॉक. नॉट द फर्स्ट टाइम व्हेन केम टू नो अबाउट ऑटिज्म. There's a difference. So yeah, that was it. And yes, like any other parent, I was devastated कि oh my god, मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया, and why me God? Why me? Yeah, why me God? What did I do wrong? That kind of feeling. Absolutely same feeling I had. And बाकायदा मैं जैसे होना चाहिए मैं रोती हुई बाहर आई अपने हस्बैंड के पास and all that. And we took time to understand it. हमने बहुत बात करी एक दूसरे से एंड देन वी केम टू अ कंक्लूजन कि जब पता ही नहीं है क्या है तो उसके बारे में रोके होगा क्या. लेट्स टेक सम टाइम, अंडरस्टैंड इट. जो डॉक्टर्स ने बोला है वो करते हैं, Right. फिर देखेंगे क्या होता है. उन्होंने बोला है प्रोग्रेस होगी तो प्रोग्रेस होगी. Right. और तब तक भी यही था कि कुछ है जो ठीक हो जाएगा. तो स्टिल इन बैक ऑफ द हेड कि क्या ये ठीक होगा, क्या ये ठीक नहीं होगा, नॉर्मल लाइफ होगी नहीं होगी, एग्जैक्टली लाइक एनी अदर पेरेंट. बट फॉर्चुनेटली बिकॉज आई वाज स्टडीइंग अ लॉट अबाउट इट, आई रेड बुक्स, आई टॉक टू डॉक्टर्स, आई यूज्ड टू क्वेश्चन अ लॉट. मेरा मतलब मुझे समझ में आ गया था Right. कि मुझे इस पे स्ट्रेस करने से कुछ होगा नहीं एक्चुअली. सो विल टेक वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे सब कराते जाएंगे and we'll accept it. And I accepted it very fast. Like I think we took just 6 months or 8 months time for me to get into this. And उसके बाद मैंने सोचना छोड़ दिया था कि क्या होगा. कुछ थॉट ज़रूर आते थे कि अगर नहीं बोला तो मतलब एक्सप्रेस कैसे करेगा, क्योंकि तब तक मुझे ये पता नहीं था कि there is also a language of communication without speech. Without speech. You can't do that. लेकिन ये आप एक्सेप्ट करते नहीं हो तो आप देखते नहीं हो. Right. So this all how our story began and we continued with this. But we did accept it very fast. So 6 month में हमने एक्सेप्ट किया. दैट इज़ अ वंडरफुल. क्योंकि आजकल के पेरेंट्स और इनफैक्ट यदि मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा कि कोई प्रॉब्लम है. इनफैक्ट मैं भी फर्स्ट टाइम ऑटिज्म के बारे में सुन रहा था. एंड बिलीव मी, जब मैंने डॉक्टर्स ने जब कहा कि हाँ ऑटिज्म हो सकता है, सो मैं बहुत ही रिलैक्स था. मुझे लग रहा था कि यार दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ डिजीज़ और मेडिसिन हम लेके आएंगे, मेडिसिन कोर्स चलेगा एंड ही विल बी ऑल राइट. मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रहा था. देन उसके बाद में जब मैंने गूगल करने स्टार्ट किया, ऑटिज्म के बारे में जानने स्टार्ट किया, तब मैंने देखा कि अरे ओ माय गॉड ऑटिज्म ये है. उसके बाद में फिर जैसे दुनिया बदल. And it is not curable. And it is not curable. Particularly when you Google it, then when you type autism in Google, then Google gives the information. The very first information which come in the Google, that is it is a lifelong condition. And that statement is maybe true, may not be true, but that is a very misleading statement. And जब आप देखते हैं कि ये लाइफलॉन्ग कंडीशन वाले स्टेटमेंट आप मानते हैं तो एक्चुअली आप अपने आप को समझाना स्टार्ट कर देते हैं. आप काम करना बंद कर देते हैं. आप अपनी किस्मत को दोष देना स्टार्ट कर देते हैं कि चलो ये हो गया, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें इसी के साथ में रहना है. सो बहुत ही मिसलीडिंग है और वो एक पेरेंट्स का एक अलग ही माइंड सेट करता है. फॉर्चुनेटली मेरे केस में भी हुआ था. मेरी पूरी फैमिली यही कह रही थी कि अब हो गया तो क्या कर सकते हैं, अब इसके साथ रहना पड़ेगा. देन आई केम अक्रॉस पीपल जिन्होंने कहा कि नहीं, इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट होता है और इसमें काम करना है. देन आई अगेन स्टार्ट सर्चिंग कि क्या है एग्जैक्टली. देन आई फाउंड नो, ये ऐसा नहीं है. इसमें यदि हम काम करेंगे और सही डायरेक्शन में जाएंगे तो बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा. सो मुझे पता चला, मुझे एक मेरे यहाँ रिलेटिव्स आए थे, उन्होंने बोला था कि उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे कहा था कि इसे ऑटिज्म है. सो इतना डेयरिंग कोई करता नहीं है, बट उन्होंने बोल दिया था. मैं पीडियाट्रिशियंस के पास गया, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे भी लग रहा है ऑटिज्म है. तो मैंने बोला कि फिर आपने तब क्यों नहीं बताया पहले. तो उन्होंने कहा कि आपको बुरा लगेगा. सो मैं बोला आप पीडियाट्रिशियन हो मेरे और आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे बुरा लगेगा. बट एनीवे उसके बाद में मुझे समझ में आया कि नहीं,
समथिंग इज़ फिजी, कुछ तो बड़ा चीज़ है, इतना छोटा नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ। देन आई स्टार्ट थिंकिंग बैक, तो मुझे समझ में आया कि हाँ 1 ईयर में भी लक्ष्य इस टाइप का करता था, ठीक है, और सही नहीं था वो चीज़। फर्स्ट बर्थडे में जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा था, जिस तरीके से बिहेव कर रहा था, वो मुझे सही नहीं लग रहा था। सो पहले ही कुछ तो लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी 2.4 ईयर्स में हम एक्चुअली में उस पर काम करने स्टार्ट किया, हमें पता चला। सो दैट पीरियड वॉज वेरी वेरी क्रूशियल, जो हमारा मिस हुआ। सो मैं इस कंसर्न में, इस रिगार्डिंग में और जानना चाहूँगा कि क्या क्या सिम्टम्स थे समर में जो अभी आपको लगता है कि हाँ ये सारे सिम्टम्स ऑटिज्म के थे और हो सकते हैं। उस समय जो मैंने स्टडी किया था, मतलब बच्चे जनरली जो ऑटिज्म में कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं वो जनरली यही करते हैं, फ्लैपिंग हैंड्स, प्लेइंग विद थ्रेड, कार को उल्टा करके, नॉर्मली कार नहीं चलाना, उल्टा करके उसके व्हील से खेलना। तो ये सी चीज़ें थी। तो पहले मुझे नॉर्मली लगता था कि ये सब तो ठीक है, इज हिज वे ऑफ प्लेइंग, सबका अपना होता है। बट व्हेन आई रेड देन दीज वर द क्लियर सिम्टम्स, एंड ऑल्सो टो वॉकिंग जो उनकी होती है, दैट वाज वेरी क्लियर इन समर। वो बाकायदा सिर्फ टो पे ही वॉक करता था। तो ये बिल्कुल क्लियर सिम्टम्स है उसके। तो उसमें तो मुझे स्टडी करने के बाद समझ में आ गया था कि ये तो ही फॉल्स इन एब्सोल्यूट कैटेगरी ऑटिज्म। यस, नो माइल्ड नथिंग ऐसा कुछ। अगर भी अपने ईयर्स बंद किए हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत टाइम तक रहा उसको, बहुत ज़्यादा सेंसरी इश्यूज थे उसे। इवन बर्ड्स की आवाज़ से वो कान बंद कर लेता था, कुकर की सीटी से तो वो परेशान होके चीख के भाग जाता था कान बंद करके बहुत दूर तक। सो यस, ही डिड अ लॉट। तो उसका डायग्नोसिस, जो फर्स्ट डायग्नोसिस हुआ, वो ऑटिज्म बताया उन्होंने कि ऑटिज्म है कि कुछ और बताया था? नहीं, ऑटिज्म ही बताया था। मतलब आई टोल्ड यू ना, फर्स्ट टाइम जब उन्होंने बताया था तो उन्होंने क्लियर वर्ड बोला था मुझे, ऑटिज्म, राइट? यस, इट इज ऑटिज्म। लेटर ऑन प्रॉपर तरीके से बताया था कि ADHD भी है, ऑटिज्म भी है, पार्ट ऑफ बोथ, ऐसे करके क्लियर। जैसे लक्ष्य का भी, यदि लक्ष्य का जो डायग्नोसिस हुआ था तो ऑटिज्म ही बताया था उन्होंने, और फिर ऑटिज्म उन्होंने कहा था कि आप स्पीच थेरेपी करवाइए। लेकिन जब अब मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में ऑलरेडी हूँ और मैं हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है और पूरा इकोसिस्टम हमने रिसर्च भी की है ऑटिज्म पे, तो अब मुझे रियलाइज़ होता है कि लक्ष्य को कभी ऑटिज्म नहीं था, उसे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स का प्रॉब्लम था। एंड प्रोफाउंडली ही हैज़ विजुअल परसेप्शन हैज़ लिटिल बिट डिस्टर्ब, और उसके रीजंस भी थे बिकॉज स्क्रीन टाइम पे भी था। सो यदि मुझे किसी ने ये बताया होता कि उसे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है और उसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की नीड है, और इस ऑफकोर्स स्पीच थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच में जब काम करते हैं तो सभी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यदि मुझे कोई ये बता दिया होता कि उसे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है और उसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि मेरी पूरी जर्नी जो मैंने लक्ष्य के लिए किया वो डिफरेंट होता ऑल टुगेदर। सो आई हैव अ क्वेश्चन। तो जब लक्ष्य छोटा था तो क्या उसके डायग्नोसिस तो हुआ होगा एट व्हाट एज? 2.4 years. 2.4 years, so same as Samar. Right. तो उसके बाद क्या उन्होंने आपको ये थेरेपी सजेस्ट नहीं करी थी क्या? Because these sensory issues come with autism mostly. बहुत कम बच्चे होंगे जिनमें sensory issues नहीं रहे होंगे, होते हैं। तो ये these therapies, especially occupational therapy, is the must. Right. तो फिर आपको क्यों नहीं सजेस्ट की गई? उन्होंने ऑटिज्म सजेस्ट किया था, और ऑटिज्म में जब आप देखते हैं कि स्पीच थेरेपी, तो पेरेंट्स, बाकी जैसे पेरेंट्स स्पीच थेरेपी के पीछे जाते हैं, और उस समय मैं भी स्पीच थेरेपी के पीछे ही गया। अच्छा। लेकिन अब चूँकि मैं इस फील्ड में हूँ और हमारे पास में एक वी हैव द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, तो अब मुझे समझ में आता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट है सारे सेंसरी इश्यूज़ को रेगुलेट करने के लिए। और वो अंडरस्टैंडिंग, वो काउंसलिंग मुझे मिली होती और उस डायरेक्शन में हम आगे बढ़े होते, तो आज लक्ष्य का केस में भी अलग होता। Absolutely, because according in my case मुझे लगता है उन्होंने मुझे तो बहुत क्लियरली सबसे पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपी सजेस्ट करी। Right, exactly. And we started immediately. Right. तो वो I'm kind of very surprised that you were not suggested occupational therapy. ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी रहा होगा, बट एक जनरल एक परसेप्शन बनता है, एक इकोसिस्टम बनता है जहाँ पे पेरेंट्स स्पीच थेरेपी के पीछे जाते हैं। राइट। सो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जानना कि व्हाट एग्जैक्टली इज द ऑटिज्म,
और उसमें क्या प्रॉब्लम है बच्चे को। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे बच्चे सेम पेज में फॉलो होते हैं, सब बच्चों को अलग अलग इश्यूज़ होता है। हो सकता है किसी बच्चे को मे बी स्पीच ज़्यादा चाहिए, ऑक्यूपेशनल का उतना एलिमेंट नहीं चाहिए, किसी बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत ज़्यादा चाहिए, स्पीच उतना नहीं चाहिए, या फिर दोनों चाहिए। ये पेरेंट्स के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेरेंट्स जब तक एजुकेट नहीं होगा, जब तक पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेगा, जब तक पेरेंट्स समझेगा नहीं, वो सही डायरेक्शन में बच्चे को थेरेपी नहीं दे पाएगा। और यही पर्पस है कि हमने स्पीच गियर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, जहाँ पे हम लोग लेवल 3 असेसमेंट करते हैं। लेवल 3 इज आर टर्म्स, वी हैव कॉइन्ड दिस टर्म्स, जहाँ पे बहुत डीप लेवल पे जाके हम असेसमेंट करते हैं और वहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है जो बच्चे के अटेंशन एंड फोकस को डिस्टर्ब कर रहा है। हम ऑटिज्म वगैरह को साइड में रखते हैं, ओके जो भी है उसको साइड पे रखो, हम लेवल नहीं करते। हमें देखते हैं कि बच्चे में प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का रीजंस क्या है, रूट कॉज क्या है, और उस रूट कॉज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब असेसमेंट आपका बहुत ही डीप लेवल पे हो, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में हो, जहाँ पे आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस, डायटिशियंस, साइकोलॉजिस्ट, सभी लोग एक साथ एक टेबल पे बैठ के असेसमेंट करें और फिर फाइंड आउट करें कि ओके दीज आर द रूट कॉज विच इज़ डिस्टर्बिंग द चाइल्ड। एंड अगेन सिंस दिस कंडीशंस आर डायनेमिक्स चेंजेस विद द टाइम, सो जरूरी नहीं है कि आज जो बच्चे को जो चीज़ डिस्टर्ब कर रहा है 6 महीने बाद भी सेम चीज़ करे, मे भी 6 महीने बाद कुछ और चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हो। तो हम रेगुलर असेसमेंट के लिए कहते हैं कि आप 6 महीने बाद में या 3 महीने बाद में पॉसिबल हो तो आप आइए और आप असेसमेंट करवाइए, ताकि एक प्रॉपर थेरेपी रेजिम बच्चे का बन सके और उस डायरेक्शन में उस पर काम हो। सो ये चीज़ मैंने जो आज पॉसिबल है और आज इस बारे में मैं सोच रहा हूँ, लेकिन उस समय जब लक्ष्य को ये प्रॉब्लम थी तो ये चीज़ मैंने मिस की। और सबसे बड़ी बात ये जो थी वो थी कि ये समझने में कितना टाइम चला गया कि व्हाट एग्जैक्टली इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी, व्हाट स्पीच थेरेपी तो समझ में आता है कि चलो स्पीच पे काम होगा, बट ऑक्यूपेशनल थेरेपी मुझे समझ में तब नहीं आता था कि क्या है ये। देन वी हैव एन नंबर ऑफ थेरेपीज, बिहेवियर थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, स्पोर्ट्स थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, फ्लोर थेरेपी, एक्वा थेरेपी, इट्स जस्ट यू नेम इट। सो वहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है और समझना मतलब ये चीज़ समझना ही बहुत डिफ़िकल्ट है कि कहाँ पे जाएं, क्या करवाएं, क्या काम करेगा। और ये मैंने देखा है कि हर बच्चे के लिए अलग अलग चीज़ काम कर जाती है, तो उसके लिए असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। और मैं अनफॉर्चुनेट था, लेकिन अभी पेरेंट्स यदि थोड़ा से अवेयर रहेंगे तो ये चीज़ करवा सकते हैं और ये चीज़ पॉसिबल है। That's great. I'm very happy that you said all these things and you came up with this speech care. I'm sure you've learned from your experience and अब बाकी लोग ना सफ़र करें से you started. This is amazing. This is nice. जी। एंड एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा मिलन, मैंने देखा है कि पेरेंट्स को जब पता चलता है कि उनके बच्चे को डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स है, तो ऑफकोर्स वो अपनी सारी एनर्जी लगाते हैं, सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, इनिशियली पैसे भी खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं, एनर्जी भी तब होती है पेरेंट्स के पास में। लेकिन कुछ टाइम बाद में एक बर्नआउट वाली कंडीशन आती है, आई मीन 3 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद में पेरेंट्स थोड़ा बर्नआउट हो जाता है, उसको लगता है कि यार अब कितना करेंगे हम लोग, फिर वो उसकी एंथुसियाज्म ख़त्म हो जाता है, वो छोड़ देते हैं काम करना। लेकिन मैंने देखा है कि आपने समर को इतने अच्छे से रेस किया, जहाँ पे समर अभी इंडिपेंडेंट है और लाइफ में बहुत कुछ कर रहा है, बहुत ड्रीम्स हैं उसके, उनके इंस्टाग्राम चैनल है जहाँ पे इतने सारे व्यूअर्स हैं। सो आपको किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? आपको बर्नआउट वाली कंडीशन नहीं आई कभी? बर्नआउट तो नहीं आई, लेकिन हाँ फ्रस्ट्रेशन होता था। अच्छा। मतलब यू गेट टायर्ड, क्योंकि मैं अपना काम भी कर रही थी, मैं समर को भी देख रही थी, एट द सेम टाइम आई आल्सो गेट प्रेग्नेंट विद अनदर चाइल्ड, तो वो दूसरा बच्चा का भी देखना था, उसी प्रोसेस में वो दूसरा बच्चा भी बड़ा हो रहा था। देयर वर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन कि मैं आई यूज्ड टू गेट इरिटेटेड जब समर बिल्कुल नहीं बैठता था, पूरे समय चलता रहता था एंड बोलता रहता, एंड यू नीड लिटिल बिट ऑफ पीस
उस छोटे दूसरे बच्चे को भी सोने का टाइम है, लेकिन समर बोलेगा तो वो सो नहीं पाएगा, वो सो नहीं पाएगा तो मैं सो नहीं पाऊंगी, और मैं सो नहीं पाऊंगी तो समर को कैसे ध्यान रख पाऊंगी, थेरेपीज करा पाऊंगी. सो ये दैट वाज अ कंडीशन सिचुएशन, बट एक्चुअली आई डिड नॉट टेक इट एज अ टास्क. मैंने कभी एज अ टास्क नहीं लिया. मुझे डॉक्टर्स ने बताया आपको थेरेपी करानी है, एंड फॉर मी बिकॉज आई बिलोंग टू डॉक्टर फैमिली, माई फादर इज अ डॉक्टर, मुझे ये चीज़ पता है कि देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स विच पीपल नीड टू फॉलो बिकॉज यू आर नॉट अ डॉक्टर. अगर आपको जो आपकी फील्ड नहीं है तो आपको एक्सपर्ट की बात माननी पड़ेगी. एंड आई वॉज लाइक आई हैव टू फॉलो व्हाट माई डॉक्टर्स आर टेलिंग मी. If they are asking me to give medication, I will give medication and I'll see what happens. Okay. मुझे अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो बहस करनी होगी तो मैं डॉक्टर से बहस करूंगी being a mother. But I'll listen and I followed that. उन्होंने बोला ऑक्यूपेशनल थेरेपी करानी है, मैंने बिना सोचे कराती गई और साथ में पढ़ती गई कि कराने से क्या होता है, कौन सी एक्सरसाइज कराने से ज़्यादा, ट्रैम्पलिंग जंप से क्या बेनिफिट है और बॉल जंप से क्या सूद होता है, टेक्सटाइल से क्या होता है. I kept reading but I did not interfere. I used to talk, I used to discuss, थेरेपिस्ट से भी डिस्कस करती थी कि इसमें ये और ऐड कर लें क्या अपन, या हम ये ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं, या ये ज़्यादा तो नहीं करा दिया. दैट्स इट. इसके ऊपर मैं बॉदर नहीं करती. आई नेवर टुक दैट स्ट्रेस ऑन मी कि मुझे ये कराना है, अब स्पीच भी करानी है, ये भी करानी है. आई ट्राइड स्पीच एंड देन आई रेड इट. मैंने कहा नहीं, समर कैन स्पीक, सो ही डजंट नीड स्पीच थेरेपी. उसके कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, सो ही नीड टू स्टडी, ही नीड टू लर्न दोज वर्ड. तो मैंने वैसे काम करना शुरू कर दिया एंड आई इन्वॉल्व्ड हिम इन एवरीथिंग आई डिड. सो आई नेवर मेड इट अ टास्क जिसमें मैं बर्न आउट हो जाऊँ कि ओ गॉड मुझे अपना करना है, फिर मुझे समर का करना है, फिर मुझे ये करना है. आई यूज्ड टू गो टू द किचन टू कुक. आई यूज्ड टू आस्क हिम टू बी देयर. आटा लो, कुछ भी करो. अब आटे से भी लोई से क्ले डो क्या करता है, सेंसरी आपके उस पर वर्क करता है, मोटर्स पे. आटा पकड़ा देती थी, वो उसे खेलता रहता था. मैं उसे बेलन पकड़ा देती थी, बनाओ. सो ही वो भी सेंसरी में मोटर पे काम करता था. तो मैं ऐसे उसको इफ आई एम डूइंग डस्टिंग कपड़ा पकड़ा देती थी, इफ आई एम डूइंग समथिंग फिर खेलती थी उसके साथ. मुझे वर्कआउट करना बहुत पसंद है. उस मॉर्निंग उसका रनिंग के लिए चली जाती थी बिकॉज ये मैंने समझ लिया था कि अगर बच्चे को ADHD है सो ही विल बी वेरी हाइपर. वो क्लास में कैसे बैठेगा, मैं उसे कुछ भी पढ़ाने बैठूंगी वो कैसे बैठेगा, तो उसे पहले भगाना है मुझे. आधा घंटा भगा दिया, थक गया, बैठाया, जितना पढ़ा सकती थी पढ़ाया. उसके बाद तुम अपना, मैं अपना आधा घंटा. वी बोथ विल ब्रीथ and then we'll get on to our work. Let's see what we do. So I never took a stress. तो मुझे वो burnout कभी नहीं हुआ. And never stopped living my life, which parents do. They leave their life, छोड़ देते हैं. हमारी जिंदगी मैटर नहीं करती, हमारे बच्चे की मैटर करती है. तो जब आप मैटर नहीं करोगे, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, तो जब आपका बच्चा उछकेगा आप 2 चांटे मारोगे उसे. How is that helping? It's not. So this is what it is. सो एक तो हमें टास्क नहीं समझना चाहिए और बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से अपने इंटरेस्ट अलाइन कर सकते हैं. छोटी छोटी चीज़ों में हम हैप्पीनेस देख सकते हैं. सपोज यदि मुझे क्रिकेट पसंद है लेकिन बच्चे को फुटबॉल पसंद है, आई एम जस्ट पुटिंग एन एग्जाम्पल, तो हमें फुटबॉल पे इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए. अल्टीमेटली द एंजॉयमेंट इज़ अ फैक्टर, द एंटरटेनमेंट इज़ अ फैक्टर. क्रिकेट देख रहे हैं, फुटबॉल देख रहे हैं, वो फैक्टर नहीं है. यदि मुझे फुटबॉल देखने में मज़ा आएगा तो इंटरटेनमेंट हो ही रहा है. तो हमें वो करना चाहिए. बच्चे की छोटी छोटी चीज़ों पे हमें एक्चुअल में हैप्पीनेस देखनी चाहिए, तब बर्नआउट नहीं आती है. सेकंड बर्नआउट इसलिए भी नहीं आई मुझे ऐसा लगता है आपके केस में, क्योंकि कंटिन्यूस समर में ग्रो हो रहा था, ग्रोथ देख रहे थे, पॉजिटिव चेंजेस देख रहे थे. वो भी ज़रूरी होता है. जब बच्चे में डेवलपमेंट होता है और बच्चा बहुत अच्छा कर रहा होता है तो हम बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं. बहुत सारे पेरेंट्स में बर्नआउट इसलिए भी आता है बिकॉज बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वो देखते नहीं है. जो भी रीज़न हो कि वो घर बैठ नहीं कर पा रहे हैं या थेरेपी उस तरीके से नहीं हो रही है, वो बहुत फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है पेरेंट्स में. वो चीज़ आपके साथ में नहीं हुआ, दैट इज़ अ गुड पार्ट. एंड सेकेंडली, आपने जितनी सारी चीज़ें की, आप अपने एक्सपीरियंस को आपने नोट डाउन किया. आप जो चेंजेस, उस ऑब्जर्वेशंस को आप नोट डाउन कर रहे थे. भले ही बहुत साइंटिफिकली उन चीज़ों को नहीं भी समझ पा रहे होगे, लेकिन उसके इफ़ेक्ट को आप नोट कर रहे थे कि अच्छा ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, जो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है और पेरेंट्स को करना भी चाहिए. तभी वो घर में काम करवा सकते हैं और ख़ुद को मोटिवेटेड रख सकते हैं.
सो जनरली होता ये है कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो अपने ही दिमाग में एक वो बना देते हैं कि मुझे क्राइटेरिया कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। अब थेरेपी अगर शुरू हुई है तो 3 महीने में 4 महीने में मुझे अमेजिंग रिजल्ट दिखने चाहिए। मेरा बच्चा बोलने लगेगा, मेरा बच्चा फिजिक्स नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, मगर इवेंचुअली ऐसा होता नहीं है बिकॉज उनको डॉक्टर ने क्या बोला, ऑक्यूपेशन थेरेपी से रिजल्ट आते हैं, पर रिजल्ट कब आते हैं ये थोड़ी ना बताया था। तो उन्होंने अब 2 महीने का टारगेट बना लिया है, 3 महीने का, एंड दे स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट इट, यू नो, कि ये तो अचीव ही नहीं हुआ। दैट इज द रीजन दे स्टार्ट फीलिंग बैड। तो वो नहीं करना है, आपको काम करना है, मतलब इतना ज्यादा वो मत कैलकुलेटिव होके नहीं चलना है इसमें। आप बिल्कुल जस्ट डू इट बिकॉज योर डॉक्टर आस्किंग, डू इट एंड रेस्ट, एंजॉय योर लाइफ विद योर किड। राइट। उसको खुश रखना मेन हमारा पर्पस है, खुद खुश रहना हमारा मेन पर्पस है। आप सब मिलके करते रहोगे तो वो स्ट्रेस नहीं फील होगा उस जर्नी में, जो आपको निकालनी तो है एनी विच वेज। एंड जब पेरेंट्स स्ट्रेस रहते हैं तो एनीवे उसका इफेक्ट बच्चे पे आता है और बच्चा भी बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, और उसमें इसलिए भी ज़्यादा आता है बिकॉज वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा होता है। आई मीन उसका डिफ़िकल्टी हो रही होती है कम्युनिकेट करने में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स का हैप्पी रहना और बच्चे पे काम करना। एक इसी कंसर्न में एक मेरा क्वेश्चन है कि बहुत सारे पेरेंट्स को ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उन्हें सेकेंड प्लान करना चाहिए कि नहीं। मैंने अपने सर्कल में बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं जिन्होंने कभी सेकेंड्स के बारे में, दूसरे बच्चे के बारे में कभी सोचा ही नहीं, बिकॉज उनको लगता है कि एक तो वैसे भी डरे होते हैं कि पहले बच्चे में प्रॉब्लम है, सेकेंड में हो गया तो क्या करेंगे, एंड सेकेंडली ये भी उनको लगता है कि यदि पहला में प्रॉब्लम है, यदि सेकेंड होगा तो मे भी हमारा प्यार बढ़ जाएगा, हमारा टेंशन बढ़ जाएगा। सो आपने जब सेकेंड प्लान किया तो आपको किसी को इस टाइप की थिंकिंग थी या फिर? बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। मुझे हमेशा 2 बच्चे चाहिए थे, मतलब फ्रॉम आई डोंट नो स्टार्ट ऑफ इटर्निटी आई गेस। बट समर जब हुआ तो आई वाज लाइक नहीं, मैं दूसरा नहीं कर सकती। नॉट बिकॉज मुझे ये डाउट था कि दूसरे को भी ऑटिज्म होगा, बिकॉज ऑटिज्म का हुआ नहीं था मेरे अंदर, लेकिन मुझे ये था मेरे बेटे को ज़रूरत बहुत है मेरी, तो दूसरा बच्चा होगा तो एग्जैक्टली सेम चीज़ की अटेंशन और प्यार डिवाइड हो जाएगा, एंड आई कांट अफोर्ड टू डू दैट विद माई किड। तो यस, मैंने 5 साल प्लान नहीं किया, आई वाज वेरी श्योर नहीं करना है मुझे, बट देन एक बैक ऑफ द माइंड देयर वाज अ रिग्रेट, that was my dream to have 2 kids. So then I did talk to psychologists. I sat down with them, so कि what should I do? I'm like मुझे बहुत वो लग रहा है, पता नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा होगा। And she was very clear in telling me, and that is still with me, and I believe that concept. She said, Milan, it's your life too. You're not just living a life for your kid. वो अपनी डेस्टिनी लेके आया, आप अपनी डेस्टिनी लेके आए हो। अगर आपका मन है, ड्रीम्स हैं आपके, टू हैव 2 kids, व्हाई नॉट, टेक अ चांस। और वैसे भी हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना भी तो ज़रूरी है। अगर ये बच्चा न्यूरोटिपिकल आपका होता है, नॉर्मल बच्चा होगा, विच वी बिलीव की होगा, तो फिर आपको वो भी तो फेस देखो आप, एंड दैट मेक सेंस टू मी। आई सेड आई विल टेक माय चांसेस। तो मैंने कोई टेस्ट फेस्ट पे नहीं कराया, बट येस, आज लोगों के इतने पेरेंट्स की मेरे पास मैसेज आते हैं, मैम क्या करें, बहुत डर लग रहा है, दूसरा भी ऐसा हो गया तो ये हो गया। तो आज तो बहुत सारे आपके पास एडवांटेजेस हैं। आप टेस्ट करा सकते हो, जेनेटिक टेस्ट करा सकते हो, ऑल्दो दे आर नॉट 100% श्योर, दे डोंट गिव यू 100% रिजल्ट। 70% चांसेस हैं कि आपके, अगर आपकी जीन्स में नहीं आता है तो 70% चांस है कि आपको बच्चा न्यूरोटिपिकल होगा, लेकिन 30% 40% चांस अभी भी हैं कि वो हो सकता है ऑटिस्टिक हो। सो यू डोंट नो, बट देन यू विल हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट इट, एंड देन अगेन इट्स योर डिसीजन, व्हाट यू वांट। राइट। सो बेसिकली अभी एडवांसमेंट काफ़ी हुआ है ऑटिज्म में। आपके टाइम पे बहुत उस समय नहीं था, कुछ नहीं था, बट अभी काफ़ी एडवांस हो गया। तो एटलीस्ट तो हम जेनेटिकल रीजंस की वजह से जो ऑटिज्म होता है उस केस को तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं। बाकी रीजंस को तो हमारे पास में है, तो वो अलग बात, बट उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड बेबी आने के बाद में शायद समर में भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए होंगे। कैसा था, दोनों का रिलेशन कैसा है? बहुत, मतलब समर पहले बच्चों को मारता था, मैंने देखा है। हाँ, मतलब वो चलते फिरते मारता, धक्का देना, ये सब चीज़ें बहुत करता था। लेकिन जब आदि आया, आदि के आने के बाद सडन चेंजेस देखी मैंने, इमोशनल थिंग, कनेक्शन। या तो समथिंग वेरी फनी स्टोरी जो मैंने कभी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बोली, पर मुझे याद आ गई तो मैं बता देती हूँ
कि आदि was sleeping in a bed. मैं बाहर थी शायद हॉल में या somewhere, and आदि started crying. तो समी को उसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती थी. पहले तो फर्स्ट डे जिस दिन आदि पैदा हुआ था उस दिन समी ने उसे चाटा मारा था. फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट, बिकॉज ये हाँ वेरी फर्स्ट डे हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आया था अपने भाई को देखने के लिए, और आदि क्राइड, अ बेबी क्राइज, तो रोया और उसे एक चाटा मारा. एंड आई वाज लाइक ये क्या हो गया. या बट दैट वाज ओके बिकॉज उसको नहीं समझ में आ रहा था कि बच्चा, एक तो बच्चा इतना छोटा कैसे होता है एंड क्राइंग. तो जेलेसी की वजह से तो नहीं? नो नो नो, अच्छा. आई एम वेरी श्योर जेलेसी क्या पता होगी, पहले दिन उसने किसी बच्चे को देखा, बट ही क्राइड एक्चुअली. तो वो उसको सेंसरी ट्रबल था तो उसे मारा. फिर कट टू घर पे जब मैं था वो बेड पे सो रहा था, कपल ऑफ मंथ्स ओल्ड, आई थिंक 3-4 मंथ्स ओल्ड, आई गेस दैट्स इट. तो समर ने मुझे उसे फीड कराते हुए देखा था कि जब वो रोता है तो मम्मा फीड कराती है. तो मैं नहीं थी तो ही पुट अप हिज टी-शर्ट, वाज ट्राइंग टू फीड हिम कि तू चुप हो जा बस किसी तरह से, यू नो, दिस इज हाउ कैन सूद हिम. एंड देयर वाज अनदर इंसिडेंट वेयर उससे उसको उठा के किचन में मेरे पास लेके आया कि यू नो बेबी इज क्राइंग एंड नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिम. एंड दैट वाज अ टाइम आई सॉ दैट देयर आर इमोशन व्हिच यू नो आई कुड सी इन समी आफ्टर अदम्य. तो ये बहुत ड्रास्टिक. और मैंने उसके बाद समी को किसी बच्चे को मारते हुए नहीं देखा है. राइट. इफ ही इज रनिंग एंड कोई बच्चा सामने खड़ा है तो ही पॉज, लाइक यू नो, ब्रेक लगाते हैं ऐसे गाड़ी में कि तेज जा रही है एकदम ब्रेक मार दिया. Used to do that. I felt so good. As it was such a good decision of mine to have another child. Yeah. ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को समझना. इसलिए मैंने क्वेश्चंस पूछा भी था, क्योंकि सेम विथ हैपनिंग विद लक्ष्य ऑल्सो. उसका छोटा भाई है जो 1 साल का हो गया है, और दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती सिखाना, वो ऑटोमेटिकली वो लर्न कर गया. सो पेरेंट्स को इस मेरा एडवाइस यही है कि थोड़ा सा थॉटफुली सोच के डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये जर्नी लंबी है थोड़ी. ड्यूटी पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि 1 साल या 2 साल में हो जाएगा, तो होने वाला है नहीं. हमें काफ़ी टाइम तक काम करना है बच्चे पे. तो हमें अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखनी चाहिए, और हमें अपनी लाइफ को भी साथ में चलानी चाहिए. बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे के हिसाब से हमें अपने आप को अलाइन करना चाहिए, जो मैं हमेशा कहता हूँ. बजाय इसके कि आप इरिटेट हो कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मैं अपनी चीज़ें नहीं कर पा रहा. बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स के मन में ये थॉट रहता है कि मेरी एक ही लाइफ है, और क्या मैं इस लाइफ को इसी के लिए वेस्ट कर दूंगा. यहाँ पे वेस्ट करने वाली बात नहीं है. आप अपनी लाइफ को वेस्ट मत कीजिए, बट आप अपने इंटरेस्ट को अलाइन करेंगे उसके साथ में, तो आपकी लाइफ भी उतना ही यूज़फुल रहेगा और बच्चे को भी फ़ायदा होगा. जैसे मैं अपने एग्जांपल दूँ लक्ष्य का. सो जब अभी रिसेंटली एक मॉल में गए हुए थे, और टोफू चूँकि चलने लगा है, तो थोड़ी देर चल के आगे निकल गया. तो उसकी मदर देख रही थी कि कहाँ गया है. जब लक्ष्य ने देखा कि वो नहीं है, गोदी में नहीं है, तो ही स्टार्ट क्राइंग कि टोफू कहाँ गया लाइक. सो हमें रियलाइज हुआ कि ये कितना केयर कर रहे हैं और ये कितना पैनिक हो गया है. सो वो इमोशंस, वो बॉन्डिंग्स जो बन रही है हमारे बीच में लक्ष्य के साथ में, और वो इसीलिए बन पा रही है बिकॉज हमने सेकंड प्लान किया. सो ये बहुत ज़रूरी है. एक और जो पेरेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन रहता है, और वो पेरेंट्स जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं अभी, वो ऑफकोर्स प्यूबर्टी वाले स्टेज पे जाएंगे. और प्यूबर्टी वाली स्टेज पे जब बच्चे जाते हैं तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनके बिहेवियर्स में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं. आप प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस बताइए कि आपने कैसे उस स्टेज को हैंडल किया. मैंने बहुत पहले से लाइफ को वैसे ही रखा जैसे सबके साथ होता है. जैसे मैं ग्रो हुई थी, जैसे मैंने अपने भाई को ग्रो होते हुए देखा था, जैसे मेरे फादर ने हम लोगों को बड़ा किया है. अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट. दिस इज एक्चुअली, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि एक तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अ न्यूरोटिपिकल एंड अ न्यूरोडाइवर्जेंट. देयर इज़ नो डिफरेंस. उनकी भी वही नीड्स हैं जो दूसरे की नीड्स हैं, बिल्कुल सेम है. पेरेंट्स गलती कर देते हैं जहाँ पे वो इतना प्रोटेक्टिव कर देते हैं कि उनकी नीड्स और वांट्स को पीछे रख देते हैं. तो अगर जो मेरा केस में अगर आप बात करें, तो मैंने उसके टाइम के हिसाब से जैसे जैसे वो ग्रो होना शुरू हुआ था, मैंने उसको सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करना शुरू किया था. बहुत प्रॉब्लम हुई थी, ऐसा नहीं. इट वॉज ईजी, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. आई हैड टू से सॉरी टू आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी टाइम्स आई डिड दैट, बट आई डिड. तो उसको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे अलग ट्रीट किया जा रहा है, मुझे घर में रखा जाता है.
क्योंकि मुझे पता था कि अदम में बड़ा होगा तो वो तो जाएगा बाहर, एंड देन ही विल स्टार्ट फीलिंग कि मुझे नहीं भेजा जाता है, यू नो। तो मेरे घर में सब कुछ एग्जैक्टली सेम तरह से चलता है। तो मैंने उसको घुमाना शुरू किया। जब वो थोड़ा और बड़ा हुआ तो मैंने उसको स्पोर्ट्स से इंट्रोड्यूस किया कि अब आप यहाँ जाओ। उससे कुछ एडवांटेजेस हुए जहाँ पे ही गॉट टू see other sex, you know, there's a girl also, there's boy also, there are you know, everybody there, how to treat with girls, how to, you know, how do you have to behave. I don't know whether he was understanding, he was not understanding, I have no idea, but मुझे introduce करना था तो I did that. Hormonal changes आ रहे थे तो वो देखता भी था, इधर उधर लड़कियों को भी देखता था, you know, all those things. There's a couple of changes which I saw, but because we were already working on them, I taught him shame फ्रॉम वेरी अर्ली ऑन। मैंने उसे सिखा दिया था। टॉयलेट ट्रेनिंग भी मैंने बहुत शुरू से ही करी थी उसकी, तो उसे वो कॉन्सेप्ट्स पता थे क्या सही है क्या गलत है। आप कपड़े लोगों के सामने नहीं उतार सकते, आपको दरवाज़ा बंद करना ही पड़ेगा। टॉयलेट ट्रेनिंग में बहुत क्लियर था, आप टॉयलेट जाते हो यू हैव टू शट द डोर। थोड़ा टाइम बाद सीखा था बट इट वॉज क्लियर। सो व्हेन एडल्ट्स दैट टीनेज केम, द प्यूबर्टी टाइम, फॉर्चुनेटली मुझे कभी इतना स्ट्रेस नहीं हुआ क्योंकि उसकी नीड्स पहले से पूरी होती जा रही थी। होता क्या है उस एज में, you want to be alone, you want your space, you sometimes need a closed room, sometimes you want to be outside, you don't want parents around you, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। ये मैंने धीरे धीरे समझ लिया था। जब मैं समर के साथ वॉक करने जाती थी तो ही इज़ अ नाइस किड, तो वो हमेशा मुझे देखता था कि चल रही हो क्या, तो आई वाज लाइक बीइंग अ प्रोटेक्टिव मदर, मैं हमेशा साथ में जाती थी। वॉक करते करते एकदम मैंने नोटिस किया कोई कॉल आ गया एंड आई गॉट स्लो, यू नो, आई वाज लाइक टॉकिंग ऑन फोन, और वो आगे जाके वैसे भी ही इज़ डबल माई हाइट, इतना लंबा है वो, तो उसकी स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा ही रहती है, तो थोड़ा आगे था एंड ही वाज टर्निंग बैक टू मी एंड लुकिंग कि आ रही हूँ या मैं जाऊँ। तो मैंने कहा ओह माय गॉड, ये तो मुझे यू नो धमकी टाइप की दे रहा है, मुझे डरा रहा है कि मैं जाऊँ क्या। तो मैंने कहा ये चला गया तो क्या। फिर मैंने एंड सडनली आई डोंट नो व्हाई दिस क्लिक्ड इन माय हेड, he's a teenager, he want to go right now alone, so I should let him go. Independence देनी पड़ेगी। मैंने दिया, मैंने कहा, मैंने ऐसे इशारा किया जाओ। अंदर से तो ऐसी हो रही थी मेरी, but I did let him go. And फिर मैंने पीछे पीछे जाके दूर दूर से देखती थी कि if he's not, whether he's disturbing people, he's not disturbing people, is he comfortable or not. I was surprised that he was very confident और अकेले जाना चाहता था एंड वो घूम के पूरा वापस आ गया। दैट वाज द डे आई रियलाइज्ड दैट इनकी जो ज़रूरतें वो हमें पूरी करनी पड़ेंगी, हमेशा बच्चा बना के थोड़ी ना रख सकते हैं। सो व्हेन यू कीप फुलफिलिंग दोज नीड्स इट्स ईजियर। और बहुत सारे पेरेंट्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं, वो एक मेकशिफ्ट जेल बनाते हैं घर में, वो अपने बच्चे को लॉक करके रखते हैं। मे भी मतलब कई बार ऐसी जरूरत पड़ भी सकता है, लेकिन ऑलवेज वो सोचते हैं, फिर वो सोचते हैं कि ऑल ऑफ ए सडन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। यदि आपको बच्चे को ठीक करनी है तो उस एज में उसको वो सारी एक्टिविटी देनी पड़ेगी, चाहे उसके लिए आपको परेशानी उठानी पड़े या थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़े, बट वो करना पड़ेगा। हमें बच्चे को बाहर लेके जानी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके इंडिपेंडेंट बनेगा और उस तरीके से काम। सो मिलन, मैं आपकी स्टोरी सुन के मैं खुद इंस्पायर हो रहा हूँ। समर का जो कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन है, वो कंडीशन इतनी आसानी से नहीं आया है। उसके लिए आपने जीत और मेहनत की है और बहुत सारे चैलेंजेस आपने क्रॉस किए हैं, और हम सभी पेरेंट्स को करना चाहिए। और जब हम मेहनत करते हैं और बहुत परेशानियों को झेल के जब हम आगे निकलते हैं और जब हम देखते हैं कि बच्चा अच्छा कर रहा है तो हमें बहुत खुशी होती है और बहुत प्राउड फील होता है। एक पेरेंट्स को और क्या चाहिए इसके कि पेरेंट्स को उसके बच्चे के नाम से लोग जानने लगे, जैसे हम आपको समर के नाम से जानते हैं। एब्सोल्युटली, ये बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है हर पेरेंट्स के लिए। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए जो मेहनत करनी चाहिए वो तो करना ही पड़ता है। सो आप मुझे बताइए कि आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए in terms of society, in terms of family, in terms of your own, you know, means life. थोड़ा सा स्टेप बात कीजिए। चैलेंजेस में तो आई वुड से सोसाइटी की बात करें अगर, तो सोसाइटी में और तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट लोगों का देखना, जब आपके बच्चे को कोई ना शेयर करता है, उसको जज करने की कोशिश करता है कि वो ऐसे क्यों कर रहा है, वो कुछ तो गड़बड़ है इसमें, that hurts, that's bad.
even though you're educated, even though you are literate, you still judge people. How bad is that? तो वो, और स्पेशली एक माँ या बाप के सामने उनके बच्चे को कोई इस तरह देखे तो वो बुरा लगता है. तो दैट वाज इट. उसके अलावा तो खैर बहुत लड़ाइयाँ करी हैं मैंने उसके लिए. समर की जो सिचुएशन थी जिसमें वो सामान खिड़की से फेंकता था, तो कभी किसी से लड़ाई करी, पहले सॉरी बोलने जाओ, कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं. जब नहीं समझते हैं तो लड़ाई करते हैं, करनी पड़ी मुझे. सो आई हैव डन दैट. दैट वाज ठीक है, पार्ट ऑफ एवरीथिंग. बट ऑल्दो I really wish society was more empathetic towards these things. And हो सकता है थोड़े टाइम में अवेयरनेस आ जाए तो शायद इम्प्रूवमेंट आए, बट उस समय नहीं था. उसके अलावा जो चैलेंजेस की बात बोल रहे हैं आप, फैमिली आमने से तो मुझे कोई चैलेंज ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ couple of things जो शायद सभी करते हैं कि वो सुपरस्टिशन में बिलीव, you know. I can't blame them because they belong to that school, such old school, कि अब उनकी भी मैं क्या बात करूं. क्या भगवान से मैंने नहीं मांगा होगा कि भगवान अच्छा कर दो या हिम्मत दे दो समथिंग. जब मैं अपनी बात बताऊं तो आई एम यू नो मींस एजुकेटेड पर्सन, लेकिन मैं भी उन सब चीज़ों में गया हूं. मैं भी सोचता हूं तो मुझे लगता है यार कि अच्छा मैंने ये भी करवाया है, मैंने भी करवाया है. लेकिन जब पेरेंट्स पहली बार प्रॉब्लम में आता है तो जहाँ से भी रे ऑफ होप मिले ना तो वो करता है वो, और उसमें ख़राब नहीं मानता. मैं भी यू नो इस तंत्र वंत्र इन सब चक्करों में फंसा हूँ. उसके बावजूद कि मैं जान रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जहाँ से एक रे ऑफ होप मिले वो करता है पेरेंट्स. और मैं इसलिए भी करता था बिकॉज ठीक है उसको करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं है, तो इसलिए भी मैं कर लेता था. और बहुत सारे पेरेंट्स करते होंगे, बट हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये कोई वैसा चीज़ नहीं है. दिस इज़ अ डिसऑर्डर, दिस इज़ अ कंडीशन. सो हमें साइंटिफिकली एंड मेडिकली ही काम करना पड़ेगा और वही तरीका काम करेगा, बाकी तरीके इस पर काम नहीं करेंगे. ये सबको समझनी चाहिए. ठीक है आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कीजिए, आपके मोटिवेशन के लिए आपको चाहिए तो कीजिए, बट करना तो यही पड़ेगा. थेरेपी करनी पड़ेगी और आपको मेडिकली ही जाना पड़ेगा, आपको साइंटिफिकली काम करना पड़ेगा. सो यस या जी बताइए आप कुछ कह रहे थे. So sorry, आपके सुनने लगी यार. हाँ, सो यस, अगर फैमिली में तो बस मुझे यही है कि people were too concerned to get into spirituality and then not spirituality actually, पूरा अंधविश्वास ही था वो. तो ठीक है, सुपरस्टिशन भी उनके लिए सही है. एक तरीका है exactly. करना चाहते हैं, बेसिकली चाहते हैं कि ठीक हो जाए क्योंकि कंसर्न है. दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन. दूसरों की बुराई नहीं है, लेकिन आप तो अपना काम कर ही रहे थे. तो मैं आई लाइक दैट वाज इट. तो मुझे पेरेंट्स से अपना मेरा सोसाइटी से ऐसा कुछ वो नहीं था, इवन फैमिली से मुझे कोई नहीं. रादर आई गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम सम फैमिली एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट एक्चुअली. आई गॉट वेरी गुड सपोर्ट. आई कुड डू माई वर्क बिकॉज ऑफ माई इन लॉज. वो मेरे साथ में थे, तो मैं समर को छोड़ के जाती थी उनके भरोसे पे उस समय ड्यूरेशन में. एंड माई हस्बैंड वॉज देयर. मेरे साइड के मैटरनल साइड के मेरे भाई, मेरे पापा, मेरी सिस्टर्स, एवरीबडी हैज सपोर्टेड टुगेदर. दैट इज़ द रीज़न मैं उतनी स्ट्रॉन्ग खड़ी रही, यू नो, कि एवरीबडी इज़ विद मी एंड एवरीबडी लव समर लाइक क्रेजी. तो ये चीज़ें हैं. बट जो अगर मैं बोलना चाहूँ पेरेंट्स को, तो मैं बोलूँगी कि आपका एक दिन में काम नहीं होना एक्चुअली. Whether you talk about superstition, you talk about spirituality, you talk about medication, you talk about therapies, nothing work wonders. कोई मैजिक नहीं है, किसी भी चीज़ में नहीं है. अगर आप भगवान से भी मांगोगे तो आपको तपस्या तो करनी पड़ेगी एक्चुअली. सो वो तपस्या में पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा. डोंट सेट टाइम. किसी चीज़ का एक क्लॉक नहीं है, ये क्लॉक वर्क पे नहीं काम करता कि मैंने थेरेपी 2 महीने दी तो आपको फिर दिखेगा, फिर उसके ऊपर दी तो दिखेगा, या मैं 1 साल का थेरेपी का टारगेट बनाया एंड he'll be absolutely fine, the kid will be fine. ऐसा नहीं होता है. Keep patience, your kid is going to be fine. You will see improvement if you want to see improvement. If you don't want to see improvement, आपको 90% भी दिखेगा तो वो आपकी कैटेगरी में कमी रह जाएगा, you know, कि आपने क्योंकि सेट कर लिए अपने बार्स. So be patient with that. Keep doing therapies. Listen to your doctors because whatever doctors are saying is for the good, always for the good. सो आपने मुझसे इतना कुछ पूछा, सो आई रियली वांट टू आस्क अ लॉट ऑफ. मुझे भी जानना था लक्ष्य के बारे में एक्चुअली. वैसे तो आपने काफ़ी कुछ बताया. ही इज़ डूइंग ग्रेट राइट नाउ विद ऑल योर सपोर्ट एंड थेरेपीज. लेकिन इस पूरे प्रोसेस में
आपने ये स्पीच केयर का कैसे सोच? सो लक्ष्य का जब पता चला कि उसे ऑटिज़म है, एंड व्हेन आई रियलाइज कि उसे ऑटिज़म है एंड एक्सेप्टेड इट कि उसे ऑटिज़म है, सो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई वाज कीप मूविंग हियर एंड देयर फॉर द सॉल्यूशन सर्च। और फिर मैंने दिल्ली ट्रांसफ़र करवाया। पहले मैं इस वेंचर को स्टार्ट नहीं किया था, मैं एक गवर्नमेंट जॉब में था। देन मैंने देखा जब हम उसके थेरेपी करवाने के लिए जाते थे, स्पीच थेरेपी पर्टिकुलरली, तो मैं देखता था चूँकि वो बोलता नहीं था, नॉन वर्बल था, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी थी, हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म हम कह सकते हैं। सो उसके इको पे, यूकेलेलिया पे काम हो रहा था और उसके लिए थेरेपिस्ट ग्लव्स पहन के वो दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन ओरल मस्कुलेचर्स, माउथ में काम करते थे जो उसके लिए बहुत पेनफुल था। और मैं जब देखता था मुझे बहुत पेन होता था और थेरेपिस्ट भी बहुत स्ट्रगल कर रहे होते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके लिए टूल्स बनाया जाए। और चूँकि वो उस समय हाउस होल्ड आइटम्स यूज़ करते थे, आइसक्रीम स्टिक यूज़ करते थे, स्पून यूज़ करते थे, जो बच्चे के लिए सेफ भी नहीं होता था बिकॉज उसे लक्ष्य बाइट कर देता था कई बार स्पून को, जो जिसकी वजह से उसका डेंचर्स भी मिसअलाइन हुआ है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए, क्यों ना एक ऑर्गेनोमिक टूल्स डिज़ाइन किया जाए। सो वहाँ से मैंने टूल्स के बारे में सोचा। जो सबसे पहला टूल्स हमने बनाया वो था हिकी। और हिकी का सिंपल फंक्शन है माउथ ओपन करने के लिए। हिकी से हम माउथ ओपन कर सकते हैं और उसके बाद में फिर थेरेपिस्ट आराम से काम कर सकता है। देन उसके बाद में हम सेंसरी बाइट बनाया। सेंसरी बाइट चीविंग के लिए है एंड जॉ स्ट्रेंथनिंग के लिए है। देन वी थॉट ऑफ स्टिमुलेशन डिवाइस जहाँ पे स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि मार्केट में जिस समय जो स्टिमुलेशन डिवाइस यूज़ करते थे थेरेपिस्ट वो बिल्कुल भी सेफ नहीं था। सिंस आई कम विथ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड मेरा एक्सपर्टीज़ वाइब्रेशन एनालिसिस पे ही है। मैं जहाँ पहले था वहाँ पे इसी डोमेन पे मैंने काम किया 16 ईयर्स। सो मुझे पता है कि वाइब्रेशन कैसे होना चाहिए और क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए वाइब्रेशन का जो हमारे नर्व्स को एक्टिवेट कर सके, जो हमारे मसल्स को एक्टिवेट कर सके। देन उसके बाद में हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद में हम वी कीप ऑन एडिंग न्यू डिवाइसेस जो थेरेपेटिक इंटरवेंशंस में काम आता है, जिसको आप स्पीच थेरेपिस्ट यूज करते हैं स्पीच डेवलपमेंट के लिए। सो पहले हम लोग सिर्फ स्पीच गेयर्स बना रहे थे जो ओरोमोटर्स पे काम करता है, हाइपो सेंसिटिविटी पे, हाइपर सेंसिटिविटी को रेगुलेट करने के लिए, मसल्स स्ट्रेंथनिंग के लिए। लेकिन बाद में फिर हमने सोचा कि सिर्फ स्पीच पे काम करने से बात नहीं बनेगी। यदि हमें ऑटिज्म पे काम करना है एज ए होलिस्टिक अप्रोच, तो हमें कॉग्निशंस पे भी काम करना पड़ेगा। सो हमने फ्लैश कार्ड्स बनाना स्टार्ट किया, TLM बनाना स्टार्ट किया। फिर हमें लगा कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो सेंसरी इशूज़ की वजह से बच्चे में आ रही है, किसी और रीजन से भी आ रही है, उसके लिए भी हमें टूल्स बनानी पड़ेगी। तो हमने फिर सेंसरी टूल्स बनाना स्टार्ट किया। सो अभी हम कंप्लीट एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो ऑटिज्म में हेल्प करता है। सो इस तरीके से स्टार्ट किया और कम्प्लीटली मैं इसी फील्ड में आ गया और पूरा अटेंशन लक्ष्य पे है और जो भी चीज़ें हैं वो उसी के वजह से है। सो ही इज़ अ मोटिवेटिंग फैक्टर टू स्टार्ट दिस वेंचर। और जो स्पेशल किट है, जो हमारा हीरो प्रोडक्ट है, वो उसको पहले मैंने लक्ष्य पे ही यूज़ किया था 6 महीने तक और उसी से लक्ष्य में इको डेवलप हुआ, स्पीच आया। मैं नहीं कहूँगा कि लैंग्वेज आ गया, बट स्पीच उसी से आया है। सो उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, ये काम करता है और इस पे हमें काम करना चाहिए। दिस इज़ अमेजिंग एक्चुअली। और आज आपने जो मुझे अपनी पूरी फैसिलिटी दिखाई, दैट इज़ ऑल्सो वंडरफुल। आई मीन यू आर रियली पुटिंग सो मच एफर्ट to create every space for these kids जहाँ पे they can have special education, they can have OT, speech therapy and everything. I mean I saw that and an amazing playground also, like जो पूरा game zone type का आपने area बनाया हुआ है where they can do a lot of activities, physical, mental, everything, which is amazing. So now coming, मतलब एक और मैं जानना चाहूँगी आपसे। So इसके बाद जब आपने पूरा गेयर इतने सारे बनाए, आपने पूरा होलिस्टिक अप्रोच पे आपने वर्क करके यू हैव लिटरली बिल्ड इट प्रॉपर्ली। सो
then how did you think about SRI and what is your vision आगे क्या सोचते हैं आप? SRI मीन्स स्पीच गेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट. सो हमने स्पीच गेयर से स्टार्ट किया था 2021 में. एंड फिर मुझे लगा कि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे और मैंने जब लक्ष्य के बारे में भी देखा, जिसमें मैंने पहले भी हमारे कन्वर्सेशन में मैंने बताया था कि लक्ष्य को लेबल किया गया था ऑटिज्म, जबकि लक्ष्य को था सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर. मैं नहीं कहता कि 100% ऑटिज्म बिल्कुल भी नहीं रहा होगा, मे भी रहा होगा, बट वो हो सकता है कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की वजह से ड्राइव हुआ होगा. सो जब उसके ऑटिज्म लेबल कर दिया गया तो पूरा फोकस स्पीच पे चला जाता है. फिर सेंसरी पार्ट छूट गया. यदि वो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर लेवल किया गया होता या डायग्नोस किया गया होता तो हो सकता है कि मेरा अप्रोच डिफरेंट होता. फिर मैंने केसेस बहुत सारे बच्चों में देखे. इवन हम लोग लेह गए थे. लेह में एक बच्चा था जिसको मेंटल रिटार्डेशन का केस बता दिया गया था, जबकि वो मेंटल रिटार्डेशन का केस नहीं था, वो ऑटिज्म का केस था. सो एक डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चे का डायग्नोसिस सही हो. यदि बच्चे का डायग्नोसिस सही नहीं होगा तो उसका थेरेपी प्लान कम्प्लीटली डिरेल हो सकता है. तो मुझे लगा कि असेसमेंट पे हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. असेसमेंट करेक्ट होना चाहिए और असेसमेंट बहुत डीप लेवल का होना चाहिए. सिर्फ ये कह देने से बात नहीं बनेगी कि बच्चे में प्रॉब्लम है, बच्चा न्यूरो डाइवर्स है, अब आप इसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाइए, स्पीच थेरेपी करवाइए, स्पेशल एजुकेशन करवाइए. वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा जितना मैं ये कहूँ कि बच्चे में एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है जो उसके अटेंशन इन फोकस को डिस्टर्ब कर रहा है, जो उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है. और जब हम उस लेवल का असेसमेंट करते हैं और उसके लिए थेरेपी प्लान करते हैं तो इट वर्क्स वंडरफुली. सो SRI स्टार्ट करने का जो मेरा विज़न है वो है असेसमेंट सेंटर्स बनाना या वर्ल्ड क्लास असेसमेंट सेंटर्स डेवलप करना. और चूँकि डायनेमिक्स भी चेंज होते हैं टाइम के साथ में, बच्चे में जो प्रॉब्लम अभी है हो सकता है 6 महीने बाद कुछ और प्रॉब्लम हो उसमें. सो इसलिए असेसमेंट भी फ्रिक्वेंटली हमें करवाने की ज़रूरत पड़ती है. तो एक अच्छा असेसमेंट सेंटर तो होना ही चाहिए जहाँ पे आप ट्रस्ट कर सकें, जहाँ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हो, जहाँ पे सभी एक साथ मिलकर काम करें, एक राउंड टेबल में बैठें, डिस्कस करें, पेरेंट्स को काउंसलिंग भी दें और सब मिलकर काम करें. ये एक विज़न है. एंड सेकेंडली चूँकि फील्ड बहुत ही नया है और बहुत एडवांसमेंट हो रहे हैं इस फील्ड में, तो बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत है. ऑफ कोर्स वी हैव सो मेनी इंस्टीट्यूट्स, गुड इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया जो अपना काम कर रहे हैं, बट हमें एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जो प्रोएक्टिवली और बहुत एग्रेसिवली काम करे, जो कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ही पॉसिबल है. तो वो भी इसका फंक्शन है SRI का. एंड जो थर्ड फंक्शन है वो है OSIT कोर्स, ओरल सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन थेरेपी. दैट इज़ अ न्यू काइंड ऑफ थेरेपी विच इज़ नाउ बिकमिंग वेरी फेमस, जिसमें ओरो मोटर्स पे, टैक्सिस पे, मोटर मेमोरी पे काम होता है. सो उस कोर्स के लिए भी ज़रूरी था कि हम एक वर्ल्ड क्लास रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्ट करें. सो ये है इस वजह से हमने स्टार्ट किया है. और मेरा विज़न है SRI को लेके कि हम डायग्नोसिस को जितना जल्दी हो सके, डायग्नोसिस नहीं कहूँगा, वो तो डॉक्टर्स का पार्ट है, मैं असेसमेंट कहूँगा. असेसमेंट एंड डायग्नोसिस जितना जल्दी हो सके उसको करना. नॉर्मली आपके एज में आपको जैसे 2.5 ईयर्स में पता चला कि समर को प्रॉब्लम है, मुझे 2.4 ईयर्स में पता चला कि लक्ष्य को प्रॉब्लम है, जबकि लक्ष्य में सिम्टम्स पहले से आ गए थे. जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट बर्थडे में ही उसको उसकी एक्टिविटीज़ में मुझे डाउट होने स्टार्ट हो गया था. तो यदि उस समय मुझे पता चला होता या किसी ने बताया होता तो मे बी उसका कंडीशन डिफरेंट होता. सो इसलिए डायग्नोसिस टाइम को रिड्यूस करना एक विज़न है. हम इसे और कम करें, 2 साल से 1.5 साल में करें, 1.5 साल से 1 साल में करें, और मे बी 1 साल से और भी कम करें. क्योंकि जितना जल्दी पता चलेगा उतना जल्दी काम होगा और बच्चा थेरेपी को रिस्पॉन्ड करेगा. दैट इज़ नाइस एक्चुअली. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप कर रहे हैं एक्चुअली, डायग्नोसिस के लिए तो हमारे पास हमेशा से डॉक्टर्स थे, वो हमेशा से ही करते आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली असेसमेंट के लिए बहुत कम लोग हैं. असेसमेंट मुझे लगता है जब मैं कराना चाहती थी समर का तो मैं किसी को जानती ही नहीं थी. तो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर कमिंग अप विद दिस एंड यू आर ऑल्सो प्लानिंग डिफरेंट सेंटर्स. तो कितने सारे लोग अप्रोच कर पाएंगे और उनके लिए एक्सेसिबिलिटी बन जाएगी कि आई कैन एटलीस्ट गो एंड गेट दिस डन. जो अभी तक इतने क्लूलेस हैं पेरेंट्स, को पता ही नहीं कराना क्या है. डायग्नोसिस सिर्फ एक
जरिया नहीं है to get a full idea about this autism. So this is something very good. I'm very happy to know about all this. एंड डायनेमिक्स इसमें चेंज होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि असेसमेंट फ्रिक्वेंटली होना चाहिए. बहुत सारे पेरेंट्स हमें इसलिए अप्रोच करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं थेरेपी करवा रहा हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या फिर मुझे घर में क्या करवाना चाहिए. और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है पेरेंट्स के लिए. तो ये कहते हैं कि कम से कम आप डायग्नोसिस असेसमेंट करके बता दो कि एग्जैक्टली क्या प्रेजेंट कंडीशन है और मुझे क्या करवाना है. So I have one more question कि क्या ये असेसमेंट एक के बाद जैसे हमने 4 महीने थेरेपी करा ली, असेसमेंट के बाद आपने जो भी रिकमेंड किया वो प्रोसेस चला, उस प्रोसेस के बाद 4-5 महीने बाद क्या वापस असेसमेंट कराना चाहिए टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ और डेवलपमेंट, या नहीं होता है ऐसा? 6 महीने करवाना चाहिए बिकॉज डायनेमिक्स चेंज होते हैं. सपोज यदि बच्चे को अभी फॉर एग्जांपल कि लाइट से प्रॉब्लम है या साउंड से प्रॉब्लम है, हो सकता है कि हमने उस पर काम किया और वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गया, बट कुछ दूसरा प्रॉब्लम आ गया जो उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हमें वो देखना पड़ेगा कि अभी कौन सा चीज़ डिस्टर्ब कर रहा है. अल्टीमेटली टारगेट इज़ कि बच्चा कम से कम डिस्ट्रैक्टेड रहे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस में आ जाए, अपने कॉग्निशन को डेवलप करे फास्टली जैसे बाकी बच्चे करते हैं. और जब एक बार कॉग्निशन बच्चे का डेवलप हो जाएगा, जब उसका मेंटल ग्रोथ फास्ट होगा, सो फिर सब कुछ ऑटोमेटिकली कर लेगा वो. और तो आइडिया ये कि हम 7 ईयर्स तक बाय हुक और बाय क्रुक उसके जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं जिससे वो डिस्टर्ब हो रहा है उसको मिनिमाइज़ करें, उसके लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करें, उसमें स्पीच लाने की कोशिश करें. और ये यदि 7 ईयर्स तक हम कर पाएंगे तो बाकी बच्चा ऑटोमेटिकली अपना टेक केयर कर लेगा. सो इसलिए असेसमेंट फ्रिक्वेंटली करवाना चाहिए. हम तो रिकमेंड 3 मंथ्स का करते हैं, बट 3 मंथ्स में यदि आप नहीं करवा पा रहे हैं तो 6 मंथ इज गुड इनफ टाइम. और यदि वो भी नहीं करवा पा रहे हैं तो 9 मंथ्स या 1 ईयर्स में तो होना ही चाहिए असेसमेंट. सो थैंक यू सो मच मिलन फॉर कमिंग ओवर हियर. हमारे व्यूवर्स को काफ़ी आपसे इंसाइट मिलेगा, काफ़ी वो मोटिवेटेड होंगे. इनफैक्ट मुझे भी काफ़ी सीखने में, मैं भी काफ़ी कुछ सीखा आपसे, और हम आगे भी मिलते रहेंगे. और आप एक रोल मॉडल हैं और सारे पेरेंट्स को आपस में कनेक्टेड होना चाहिए और एक दूसरे से लर्न करना चाहिए. सो मैं अपने सारे व्यूवर्स को कहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस समर के वीडियो भी देखें ताकि वो इससे इंस्पायर हो सकें. आप भी अपने बच्चे को उस लेवल तक लेके जा सकते हैं, बट उसके लिए मेहनत लगती है. सो आज भी मेहनत करेंगे तो कल इसका आपको रिजल्ट्स आएगा. And I also want to say thank you so much for inviting me, because I came to know about a lot of things, and your plan of coming up this facility जहाँ पे proper तरीके से सबका assessment हो सकता है, and they can do, I mean you guys are ready to make this progress for these kids. So I love this conversation. I mean it was amazing. Thank you so much for inviting me and calling me on this platform so that I can tell and we both together can spread this awareness. Thank you so much. Thank you.